أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 67 تک کیا تھا. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 68. آیہ نمبر 68 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اچھا ہمیں یاد ہے ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے نا کہ وہ مشرک نہیں تھے اور وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک حنیف مسلمان تھے. ابھی وہیں سے اینڈ ہو رہا تھا، اسی لیے میں لاسٹ ٹائم یہ آیت کرنا چاہ رہی تھی کہ اس پہ اینڈ کریں، لیکن نہیں کر سکے تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ان اولا الناس بابراہیم، ان انڈیڈ بے شک، اولا الناس، اولا الناس کا مطلب، اولا کا مطلب ہے قریب تر ہونا. یہ ولی سے نکلا ہے، اولا یعنی ولی اسم تفضیل فرام ولی. ولی اور اولا، ولی ہم کس کو کہتے ہیں؟ فرینڈ کہتے ہیں، قریبی گارڈین کو کہتے ہیں. تو اولا مطلب جو کلوزسٹ، جو کلوزسٹ ہے، جو ولیوں میں سب سے کلوزسٹ ہے، آپ سمجھ لیں. ان اولا الناس بابراہیم، پانی پی لیا، یہ منہ میں ڈال. سٹارٹ کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی. چلے تو indeed the closest among the people اولا الناس بابراہیم یعنی who claim relationship with ابراہیم علیہ السلام. جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم، آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم نے کہا کہ جوز کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی مذہب پہ، اور کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹیفائی کر دیا کہ سب سے زیادہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، تھے مطلب. سوری، تو اردو میں ہم کہیں گے کہ بے شک ان لوگ، بے شک لوگوں میں سے، اولا الناس سے لوگوں میں سے زیادہ قریب یا قریب ترین کہہ دیں یا زیادہ مستحق ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ انگلش میں the close indeed the closest among the people to claim relationship with ابراہیم علیہ السلام. اور کون پتہ؟ للذین تبعوہ. La means surely, الذین those who are surely those who اتبعوہ who follow him. یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. ٹھیک ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. هَذَا النبی، اس ہذا پہ نوٹ کریں کہ قرآن میں بات ہو رہی وَهَذَا and this prophet, and this prophet وَهَذَا النَّبِيُّ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی it is pointing towards the نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پروفٹ کو اللہ سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. پلس اب دیکھیں کون آگے، والذین آمنوا، والذین آمنوا and those who believed. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کلیم کر سکتے ہیں ریلیشن شپ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینٹینس کے اینڈ میں کہتے ہیں، اس جملے کے اینڈ میں، واللہ ولی المؤمنین، and Allah is the wali, Allah is the guardian. اللہ ولی ہے. فوزیہ آپ کی مائک پلیز بند کر لیں. And Allah is a guardian، اور اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ حامی اور مددگار ہے. کس کا؟ مؤمنین کا، آف دا بلیورز. مومنوں کا اللہ حامی اور مددگار ہے، اللہ پروٹیکٹیو گارڈین ہے، اللہ ولی ہے کس کا؟ بلیورز کا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوا ھذا النبی والذین آمنوا. آپ نے ابھی اس کی میننگ دیکھ لی کہ اسلام میں کیا چیز ہے، اسلام میں کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہے ولی ہونے کے لیے. اس وقت میں اس ولی کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جیسے ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اگر باپ موجود نہیں ہے تو کون ہے نمبرز، کون وراثت کے لیے سے، کون نزدیک ہے. کیا اس وقت جو ایک ہیومنز کو یونائٹ کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی کہ اسلام میں دو لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے، دیکھیں فیملی تو فیملی ہے، فیملی کے علاوہ آپ سمجھیں کہ جو لوگ یونائٹ ہوتے ہیں اس میں کیا چیز سے یونائٹ ہوتے ہیں؟ فیتھ سے.
मुसलमान जो हैं मुसलमान से यूनाइट होंगे, क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन से यूनाइट होंगे, यहूदी जो है यहूदी से यूनाइट होंगे, हिंदू जो है वो हिंदू से यूनाइट होंगे, बुद्धिस्ट जो है वो हिंदू बुद्धिस्ट से यूनाइट होंगे। अगर फेथ नहीं है, ईमान नहीं है, तो कोई भी चीज है, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप है, चाहे वो लिनिएज है, चाहे रेस है, चाहे लैंड है, यानी हम सब अमेरिका में रह रहे हैं बट हम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, हमारा फेथ डिफरेंट है। लेकिन जहां फेथ की बारी आई, देखिए अभी हम सब इकट्ठे हो गए। तो फेथ जो है वो बहुत इसेंशियल क्वालिटी है। ईमान इज द इसेंशियल क्वालिटी इस्लाम में जो हमें इकट्ठे लाती है। सिर्फ एनिमल्स ही होते हैं ना जो ग्रुप टुगेदर होते हैं बेस्ड ऑन लैंड, स्पीशीज, फूड। हम उनको कैसे करते हैं, ये 2 टांगों वाले हैं, ये 4 टांगों वाले हैं, ये बगैर टांगों वाले हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये फला है, कैसे उनको हम करते हैं? इस तरह से करते हैं क्योंकि वो कहीं एक जगह के जानवर दूसरी जगह के जानवर, उसमें बाउंड्रीज क्या है, फेंसेस क्या है, लेकिन इंसानों में नहीं। इंसानों में, इंडिविजुअल्स में और कम्युनिटीज में भी और जेनरेशंस में भी, सिर्फ इंडिविजुअल एक लेवल पे नहीं है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से क्यों यूनाइट हो रही है? एक मस्जिद दूसरी मस्जिद से इतनी दूर है लेकिन उस मस्जिद के लोग इस मस्जिद को जानते हैं। अब छोटी सी अपने एलए का ही देख लें, यहाँ का देख लें, ऑरेंज काउंटी का देख लीजिए कि हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारी मस्जिद, आपकी कम्युनिटी क्या है, आपकी मस्जिद। कितना हम किस तरह यूनाइट हो रहे हैं? वी आर यूनाइटेड बाय फेथ। और जनरेशन टू जनरेशन भी हम याद करेंगे, हाँ फला जनरेशन में फला स्कॉलर था, फला मुस्लिम था, फला ये था, उनको याद करेंगे, चाहे वो काला था चाहे वो गोरा था, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या, इसकी कंक्लूजन क्या है कि फेथ इज दैट विच यूनाइट्स वन बिलीवर विद द अदर, वन कम्युनिटी विद द अदर, वन जनरेशन ऑफ बिलीवर्स विद द अदर। और इसमें क्या होता है, टाइम, प्लेस, ब्लड वगैरह सब चीजें किस तरह वो यूनाइट हुए? विद देयर फेथ इन अल्लाह, with their iman in Allah, the akhirah and the Islamic belief system. तो अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि बेस्ट क्लेम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे था किसकी थी? जो उनको फॉलो कर रहे थे जिस वक्त वो अलाइव थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे, सबसे ज्यादा क्लेम उन्हीं को है कि हम इब्राहिमी हैं, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे, उनके मेथड को फॉलो कर रहे थे। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके जमाने में भी वो खुद फॉलो कर रहे थे, और जो उनके साथ थे, अल्लाह ताला खुद बता रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ इब्राहिम। फिर जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे थे उस वक्त, मुहाजिरीन थे, अंसार थे, जितने भी उनके सहाबा थे, उनके कंपेनियंस थे, वो भी क्लेम कर सकते हैं कि हम इब्राहिमी रिलीजन पे हैं। उसके बाद किसकी बारी है? वो जमाना गुजर गया, जनरेशंस आ गए, हर जनरेशन में कुछ लोग फॉलोअर्स ऑफ इब्राहिम थे, कुछ नहीं थे। उसके बाद मेरा और आपका जमाना आ गया। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं, मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया को फॉलो करते हैं, जो कुरान में है फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा क्लेम क्या है कि हम इब्राहिमी रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं। अब उस जमाने की शरिया नहीं थी, डिफरेंट थी, ठीक है ना, लेकिन हम उसी अकीदे पे चल रहे हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। एंड ऑफ द आया में अल्लाह ताला कहते हैं ना, आई एम द वली ऑफ द बिलीवर्स, आई एम द गार्डियन ऑफ द बिलीवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह जो है वो हमारे साथ है, वो हमारा वली है। इस सारे एक जुमले का, एक सेंटेंस का, एक आयत का, ये जो है ना, ये उसका क्रक्स है कि अगर हमने बिलीव किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और तमाम प्रॉफिट्स को हमने उन सब पे बिलीव किया, तो अल्लाह हमारा वली है और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमें शेल्टर करेगा, वो हमें गाइड करेगा, वो हमें अपने कवर में रखेगा, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन में। एंड में जाके अब मैं सिर्फ इसमें से ये चीजें निकाल रही हूँ कि हमने इससे क्या सीखा। अभी मैंने रिपीट किया बार बार, इसलिए कह रही हूँ कि हम यहाँ रहते हैं, हमें ये चीज जरूरी पता होना चाहिए कि भी हम ये सीखते हैं कि द बिलीवर्स आर यूनाइटेड बाय फेथ। नंबर 1 सबको समझ में आ गया। इसके अंदर क्या आ गया? इसका मतलब ये है कि हमारी जो लॉयल्टी है वो वी डिवोट इट टोटली टू अल्लाह, टोटली टू अल्लाह। इब्राहिम का नाम के साथ क्या था? हनीफ। वो भी सीधे थे, यकसू थे, सिर्फ अल्लाह को डिवोट किया करते थे, एक्सक्लूडिंग एवरीबडी एल्स। तो हम भी टोटली, हमारी जो डिवोशन है, हमारी जो लॉयल्टी है, इट इज टू अल्लाह। नंबर 3 हम ये सीखते हैं कि हमारी जो वन फैमिली है और वन नेशन है, क्या चीज है? उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, और हम पूरी एक फैमिली है। ये जो हम बोलते हैं ना एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर, और ये इसीलिए बोलते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारी आदत हो गई यहाँ रह के। पाकिस्तान में तो हम किसी को नहीं बोलते हैं,
ब्रदर फलान, सिस्टर फलान, क्योंकि वहाँ हमारे पास एक तहजीब है। एक तहजीब ये कि जो भी नजर आता है, अभी क्लास शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि जैसे मेमन में कहते हैं भा, उसमें उर्दू में कहेंगे भाई, हम कहेंगे आपा, बाजी, यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि अगर तहजीब से बात करना है तो ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं। अब वो छोटी भी है तो भी सिस्टर बोलेंगे, छोटा है तो भी ब्रदर बोलेंगे, वहां तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि जो हमें चीज बॉन्ड कर रही है वो हमारी फेथ बॉन्ड कर रही है, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम हो गए, ठीक है। और ये ऐसा बॉन्ड है, ये भी याद रखें, व्हाट डू वी लर्न, वी आल्सो लर्न कि ये ऐसा बॉन्ड है जो हमको वॉलंटरीली टुगेदर कर रहा है। हम अपने फेथ को चूज कर सकते हैं, हम अपने फेथ को लीव कर सकते हैं, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि हम मुर्तद हों, लेकिन फेथ को चूज कर सकते हैं। अब जो मुसलमान नहीं थे, हमारे इर्द गिर्द कितने न्यू मुस्लिम्स हैं, उन्होंने फेथ को चूज किया, दे बिकेम आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितनी प्यारी बात है। लेकिन अपनी सोसाइटी में अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, हम रेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे यहाँ कलर को बेसिस बना लिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम काले हैं तो हम काले हैं, या हम ब्राउन है तो हम ब्राउन है, हम एशियन है तो हम एशियन है। तो जो सोसाइटी करती है, ये बैरियर्स जो है, ये हमेशा हमेशा लोगों को डिवाइड करने पे लगी रहती हैं। लेकिन क्या चीज अक्रॉस द बाउंड्री जाती है, अक्रॉस दीज बैरियर्स जाती है, अक्रॉस टाइम एंड प्लेस जाती है, अक्रॉस नेशनैलिटीज जाती है, रेस, लीनियज, कंट्री, हर चीज को जो क्रॉस करती है, कट्स अक्रॉस ऑल बॉर्डर्स, वो क्या चीज है, वो फेथ। और अल्लाह सुब्हान ताला हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो हमारा गार्डियन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नेक्स्ट आयत पे जाते हैं, आयत नंबर 69। वद्द ताइफतुम मिन अहलिल किताबी लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको भी जरा गौर से अभी आप सुनिएगा। वद्दत, वद्दा, वद्दा यवद्दु यानी टू विश करना, चाहना। वद्दत या पढ़ चुके हैं पहले, वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी यानी विश करती थी, चाहा एक ग्रोह ने, एक ग्रुप ने, ताइफा यानी एक ग्रोह, एक ग्रुप ने, एक पार्टी ने, विश्ड अ ग्रुप मिन अहलिल किताबी फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक यानी अहले किताब में से एक ग्रोह ने ये चाहा, क्या चाहा, लौ युदिल्लूनकुम, लो मतलब काश, कि हम कर सके, इफ दे कुड मतलब एक ख्वाहिश है उसको, काश, युदिल्लूनकुम, युदिल्लु किससे निकला है, अदल्ला युदिल्लु इदलालुन, दाद से है, ठीक है ना। दाद से क्या होता है, दालिन क्या होता है, गुमराह होना। अदल्ला युदिल्लु इदलालुन, ये फॉर्म 4 है। इफ दे कुड लीड यू एस्ट्रे, इफ दे कुड मिसगाइड यू, काश वो गुमराह कर दें आपको। ये कौन है, अहले किताब के लोग थे, उनमें से सारे के सारे नहीं, याद रखिए, अताइफा, उसमें से एक गरोह, फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, फ्रॉम द अहले किताब, वो ये ख्वाहिश करते थे कि अगर हम किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराही में डाल दें। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, बट नॉट युदिल्लूना, दे लेड अस्ट्रे, दे मिसगाइडेड, लेकिन नहीं वो गुमराह करते हैं किसको, इल्ला अनफुसहुम, एक्सेप्ट देमसेल्व्स, सिवाय अपने आप को। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह करने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या होता है, वो खुद ही गुमराह हो रहे हैं। वमा यशउरून बट दे आर नॉट अवेयर, वो ये चाह रहे हैं करने के लिए कि गुमराह करें, लेकिन खुद को ये शऊर नहीं है, दे डू नॉट परसीव, दे आर नॉट अवेयर, वो शऊर नहीं रखते हैं किस चीज का, कि वो खुद को गुमराह करें। शाउरा यशउरू शुऊरन, शाउरा यशउरू शुऊरन, ठीक है। जो लिख रहे हैं उनके लिए मैं इसलिए रिपीट कर देती हूँ। नेक्स्ट आया है आयत नंबर 70। या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। इसके बाद नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, या अहलल किताबी लिमा तलबिसूना अल हक्क बिल बातिल व तक्तुमूना अल हक्क व अंतुम तालमून। या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, ए अहले किताब, या अहलल किताब, ओ पीपल ऑफ द बुक, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, क्यों आप कुफर करते हैं, क्यों आप इनकार करते हैं, वाई डू यू डिनाई, वाई डू यू डिसबिलीव बी आयातिल्लाह, इन द साइंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की आयात का। अब आयात की बहुत सारी आपको पता है ट्रांसलेशन है, वर्सेस भी होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, साइंस भी हैं। तो जो भी है इसमें इस वक्त नजर ये आ रहा है कि अल्लाह की आयात, आप उर्दू में कह लें, इंग्लिश में आप कह लें, इन द साइंस ऑफ अल्लाह, इन द वर्सेस ऑफ अल्लाह। व अंतुम तशहदून, व अंतुम वाइल यानी हालांकि, जबकि, अंतुम यू आप, तशहदून आप गवाही देते हैं, यू आर विटनेसेस, while you bear witness, आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि आप अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं।
اور نیکسٹ میں ہے آیا 71 جو ابھی ہم نے پڑھا, یا اہل الکتاب, او پیپل آف دا بک, اے اہل کتاب, لما تلبسون الحق بالباطل. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. وائی ڈو یو, لما وائی کیوں, تلبسون, لبسا یلبسو لبسن, کسی چیز کو کور کرنا, کسی چیز کور کیا کرنا بلکہ مکس کرنا, خلط ملط کرنا کہتے ہیں نا اردو میں, کہتے ہیں میں نے اردو میں ٹرانسلیشن ڈھونڈی تو اس میں مجھے یہی ایک ملا, خلط ملط کرنا مطلب مکس کر دینا, ایک چیز میں ملاوٹ کر دینا, سمجھ لیں. لما تلبسون الحق بالباطل, why do you mix the truth with falsehood, آپ کیوں آپ خلط ملط کرتے ہیں حق کو باطل سے, باطل کے ساتھ مکس نہ کریں نا, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کو مکس نہ کریں, سچ کو سچ ہونا چاہیے, جھوٹ کو جھوٹ ہونا چاہیے. وقت تک تمون الحق کا, اور آپ ہائڈ کرتے ہیں, آپ چھپا, تک تمونا کتما یک تمو کتمانون, آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ, کتما یک تمو کتمانون, اینڈ یو ہائڈ, و تک تمون الحق کا, اینڈ یو ہائڈ, یو کنسیل دا ٹروتھ, آپ کرتے ہیں, وہ انتم تعلمون, وہ پھر اگین وہی چیز ہے کہ جب کہ, حالانکہ, وائل انتم یو تعلمون, یو نو, you have knowledge, جبکہ آپ جانتے ہیں, جبکہ آپ علم رکھتے ہیں. اب یہ 69 سے 71 کی تفسیر کر لیتے ہیں. 69 میں آپ کو یاد ہے, ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا 69 میں, کہ ایک ایسا گروہ ہے جو چاہتا ہے اہل کتاب میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گمراہ کر دے, اور لیکن اب وہ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ خود پرسیو نہیں کرتے, لیکن اس کا مطلب یہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں. تو there is no doubt کہ ایسا کوئی ڈیزائر اگر کسی کے دل میں ہے, کسی کو موٹیویٹ کر رہا ہے, یہ کس چیز لے کر رہا ہے, prejudice, bias, grudge, اور یہ ایسی جو خواہش ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اچھی خواہش ہے نہیں, ڈیوینٹ ہے. یہ ایسی خواہش ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, اس میں ٹیڑھ ہے, یہ خواہش صحیح بالکل نہیں ہے, ایول ڈیزائر ہے, یہ ایک شر ہے جو اس کے دل میں ہے, اور اس کو کبھی بھی یہ صحیح گائیڈنس پہ بیس نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب وہ کسی ڈیزائر کر رہے ہیں کہ کسی اور کو ٹرن کر دیں صحیح راستے سے, مسلمز کو ٹرن کر دیں ان کے فیتھ سے, تو کیا ہوگا, ایسی ڈیزائر پہ کیا اللہ ان کی مدد کرے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کر دے گا, وہ خود ہی گمراہ ہو جائیں گے. اور اسی طرح پھر آیت 70 میں ہے کہ اہل کتاب سے اللہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کفر کرتے ہیں, کیوں انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے, جبکہ آپ تشہدون, جبکہ آپ خود بیئر وٹنس کر رہے ہیں, جبکہ آپ خود شہادت دے رہے ہیں, آپ خود گواہی دے رہے ہیں. کس چیز کی گواہی دیں؟ bear witness to what? bear witness to the signs and the verses in the Torah and the Injil. تورا اور انجیل میں کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں تھیں, ایک نبی آئے گا اس کی خبریں تھیں. تو وہ تورا اور انجیل کی جو خبریں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں. ہاں اس میں نام محمد نہیں دیا ہوا تھا, احمد دیا ہوا تھا, لیکن یہی جب اس میں ہے, یہ لوگ وٹنسز ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسکالرز ہیں جو جوئش اور کرسچن اسکالرز ہیں, ان کو بالکل پتا تھا کہ یہ ہے, اور کسی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا اس وقت, ناممکن تھا, سمجھ لیں, صرف ڈیفیکلٹ نہیں, امپاسبل تھا کہ وہ ڈاؤٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی ہے کہ نہیں آئی. جب وہ اللہ کے سائنس دیکھتے تھے, جب وہ پڑھ رہے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ ہاں یہ جو نبی آئے یہی نبی ہیں. they knew. وہ پھر لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ لمبی سٹوری, بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی میں سے نہیں آئے, ان کے کلینس میں سے نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, سائنس تو آ گئے, ان کو پتا تھا آنے والے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دیکھا تب تو ان کو پتا چل ہی گیا نا کہ یہی وہ نبی ہے. نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ دھوکہ دیتا ہے, نہ وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو حرام ہے. مطلب ان کی کیریکٹر کو دیکھ کر بھی, ان کی ٹیچنگز کو سن کے, ان کی جو اپنے صحابیوں کی جو ٹریننگ تھی اس کو دیکھ کے کون سوچتا کہ یہ جو ہے یہ نبی نہیں ہے. مطلب بہت کلیئر تھا, ہم تو تھے نہیں نا, تو اسی لیے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اس وقت بہت کلیئر تھا کہ یہی نبی ہے, انہی پر نبوت آئی ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو قرآن وہ لے کر آئے, قرآن ان اٹ سیلف اتنا بڑا میریکل ہے. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم امیز ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھیے کہ جب قرآن آیا, بالکل زبانی فرسٹ ٹائم آیا, اور عرب تھے وہ لوگ, عربی ان کی زبان تھی, تو ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ہاں, سمجھ آ رہا تھا کہ ہاں یہ قرآن جو ہے یہ بہت ہیوی ہے, یہ بہت لافٹی ہے, اس میں بہت چیزیں ہیں جو یہ ڈیوائن ہی ہو سکتا ہے, یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے.
इनफैक्ट बहुत सारे क्रिश्चियंस और जूइश स्कॉलर जो हैं उनको पता था दिल में कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं, लेकिन वो सबके अपनी स्टबर्ननेस की वजह से वो बोलते नहीं थे, लेकिन कभी कभी उनकी कोई ना कोई ऐसी वर्बल एक्सप्रेशन आ जाती थी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग की कोई ना कोई सच्चाई को वो बता देते थे। हाँ, ये बात सच है। और कुरान इसलिए कई दफा रिपीटेडली वो ब्लेम करता है कि इन लोगों ने मेलिशियसली माने इवल डिजायर के साथ इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया अल्लाह की साइंस को, उनका इनकार किया और मिस रिप्रेजेंट किया, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, खुद ही शहादत दी, खुद ही अल्लाह ताला यही कह रहे हैं तशहदून व अंतुम तशहदून, जबकि तुम खुद विटनेस कर चुके हो। और इसके एक दफा विटनेस का नेक्स्ट आयत में आपने देखा 71 में क्या है, तालून व अंतुम तालून, जबकि तुम जानते थे। और उसके साथ क्या अल्लाह कह रहे हैं, या अहलल किताब लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़, यानी आप क्यों मिक्स करते हो, आप फॉल्सहुड को क्यों, आप ट्रूथ को क्यों फॉल्सहुड से छुपा देते हो, कवर कर देते हो, और आप ट्रूथ को कंसील कर देते हो। तो अल्लाह ताला इस एटीट्यूड को बहुत ज्यादा कंडेम कर रहे हैं पीपल ऑफ द बुक का, अहले किताब का। और ये उस वक्त से उन्होंने शुरू किया है जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने एक्यूजेशंस की, सब कुछ किया, दिल मानता था लेकिन वो सबके सामने नहीं मान रहे थे, स्टबर्ननेस थी। और वो ही एटीट्यूड अब तक उनका चला आ रहा है, वही एटीट्यूड अब तक चला रहा है। उनको मुसलमानों से दिल्ली नफरत है। अब ये मत समझ ले कि मेरा पड़ोसी है वो क्रिश्चियन है, वो बहुत अच्छा है, वो तो मेरी बड़ी इज्जत करता है, मेरा बड़ा ख्याल करता है, इधर मेरा जू है, वो मेरा, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि जनरली आपको पता है और मुझे पता है, हम इसकी ज्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत ही नहीं है कि वो लोग हमसे नफरत करते हैं। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं, वो जेलस हैं कि ये जो नबी आए और ये जो कुरान आया, ये इस ग्रुप पे क्यों आया, हमारे ग्रुप पे क्यों नहीं आया। और वो जब देखते थे कि मुसलमान अपने फेथ पे बहुत फर्म है और उनको अल्लाह ताला रीअश्योरेंस दे रहा है कि मैं आपका वली हूं, तो और ज्यादा वो अपनी एफर्ट्स को मोबिलाइज करते थे किसी तरह के उन लोगों को गुमराह करते। तो उनकी जो इनर डिजायर थी, इनर जो उनकी प्लॉटिंग थी, उनकी जो स्कीमिंग थी, उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी, वो ट्रूथ को छुपाना था, वो मिक्स करना था हकायक को डिलिबरेटली और नोइंगली था। इसीलिए अल्लाह कहते हैं व अंतुम तालमून, आपको मालूम था फिर भी आप ये कर रहे थे। पहले अल्लाह ने कहा तशहदून, वो उसके साथ जा रहा था कि आपने देख लिया। अब जो आप मिक्स कर रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि आपको मालूम है फिर भी आप मिक्सअप कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को, हंड्रेड्स थाउजेंड्स लोगों को ऐसे उन्होंने इम्प्लांट किया हुआ है हर तरफ आज भी दुनिया में कि वो हमारी इस्लामिक हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो इतना डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को, इवेंट्स को, कि अगर हम उनकी कहानियों पे जाएं, उन्होंने जो अपने वर्जन्स बनाए, तो हम अपने इस्लामिक वर्जन को भूल ही जाएंगे। मतलब वो इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपने बारे में कि हमको लगेगा कि हम ही गलत हैं। तो जो बेस्ट ऑफ मेन जो थे उनके बारे में भी उन्होंने खराब बातें की। और इतना किया कि हदीस में भी आप देखें, हमारे पास सबसे बड़ा क्या, कुरान, कुरान के साथ हदीस। अगर हमारी हदीस लिटरेचर को अगर ये किसी तरह भी डिस्ट्रॉय कर सके तो इन्होंने कोशिश की। इन द फील्ड ऑफ हदीस इन्होंने इतने शक और शुबहात डाल दिए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हदीस जो है उस वक्त लिखी नहीं जा रही थी, उस वक्त लिखी नहीं जा रही थी, और ये 200 साल के बाद इन्होंने लिखा है। और हमारे मुसलमान इजीली ये बात बिलीव कर लेते हैं। तो स्कॉलर्स ऑफ हदीस ने मिलके उन सब चीजों को वेरीफाई किया, सिफ्ट किया, और ट्रू और फॉल्स को अलग किया। और आप देखिए जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल था, और आप देखिए इस तरह उन्होंने बताया कि ये सही बुखारी है, ये सही मुस्लिम है, इनकी जो हदीस है वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, याद रखिए। और 6 की 6 किताबें जिनको हम कहते हैं सित्ता जो है, यानी 6 जो बुक्स हैं, तो वो सब की सब जो है वो सब में बहुत सारी ऑथेंटिक ही हदीस हैं। तो ये डिस्टॉर्शन जो ये हमारी नॉट सिर्फ हदीस बल्कि कुरान की कमेंट्री में भी आ गई। आप देखिए जो तफसीर इब्न कसीर है, उसके अंदर भी जो शुरू के जो इसके जो वर्जन्स थे उसमें बहुत सारी इसराइलियात आई हुई है। तो एक कुरान का स्टूडेंट अगर है, मैं और आप अगर स्टूडेंट हैं और हम कहते हैं हम तो तफसीर इब्न कसीर पढ़ रहे हैं, उसमें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो उसमें बहुत सारी चीजें थी जो इसराइलियात की थी। अब उसको सिफ्ट कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें कोशिश ही की गई है कि उसमें से वो चीजें हटा के उसके अंदर सिर्फ जो सही हकायक है उनको रखें। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ स्टूडेंट कि क्या है। अब मुझसे कितने लोग पूछते हैं हम कौन सी तफसीर पढ़ें, हम कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ें।
देखें मेरी बहनों, एक बात बता दो, कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी तफसीर 100% एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का मतलब ये है कि जिस बंदे ने कोशिश की है, एक्यूरेट का लफ्ज शायद नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस बंदे ने भी कोशिश की, जिसने भी तफसीर लिखी है, बड़े बड़े उलमा ने लिखी है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, उनके इंटेंशंस पे किसी को भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी बेस्ट नॉलेज में लिखा है। अब हर बंदे को तमाम नॉलेज तो हो ही नहीं सकती ना। अगर मैं कितना भी पढ़ लूं, पीएचडी के ऊपर भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं कुरान को हर तरह से पढ़ लूं, फिर भी क्या मैं पूरे कुरान को हर तरह से छानबीन करके, तमाम सहाबा ने जो कुछ कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा और जितनी भी किताबें मौजूद है, क्या मैं सब पढ़ के उसका खुलासा कर सकती हूँ? नहीं। तो हर बंदा ट्राई करता है, हर बंदा ट्राई करता है, हर स्कॉलर ट्राई करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बदले समझे कि उसमें दो चीजें गलत आ गई या एक चीज गलत आ गई, इसका मतलब हम ये नहीं कहते हम उस तफसीर को कह दें कि नहीं ये तो हम पढ़ ही नहीं सकते। उसको पढ़े, उसको समझे, जो भी तफसीर आपको अच्छी लगती है पढ़े समझे, जो आपको पता चलता है बड़े स्कॉलर की ऑथेंटिक है। कोई चीज आपको जहाँ कंफ्यूजिंग लगती है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ डाउट्स हैं, ये तो मैंने ये सुना था, ये वो आप फिर कहीं और से चेक कर लें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्रॉस रेफरेंस भी करें विद अदर तफासिर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इन लोगों ने क्या, अब सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ वो चली गई थी, लेकिन इट इज रेलेवेंट। तो उन्होंने जिस तरह यहूदियों ने और नसारा ने यानी ईसाइयों ने जिस तरह से हदीस के साथ उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, कुरान के साथ भी गड़बड़ करने की कोशिश की। कुरान को तो चेंज नहीं कर सकते, आई नोबडी कैन डू दैट, क्योंकि वो तो बनाया है लोगों ने, अपने अपने तरफ से कुरान बनाए हैं, और आपको पता है कि लोगों ने अटेम्प्ट्स किए, लेकिन पता चल जाता है कि वो नहीं है, और पता भी चल गया सबको, न्यूज भी आ गई कि इसको मत पढ़ना, उसको मत पढ़ना। लेकिन हमारे दरमियान कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट उनको उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं मुस्तशरिकीन। मुस्तशरिकीन यानी ओरिएंटलिस्ट ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी पोजीशंस ली हुई हैं इन इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, और इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे अपना उनको अपॉइंट कर दिया है, वो मुस्तशरिकीन है, और लोग समझते हैं कि ये हमारे सही स्कॉलर्स हैं। आप देखें यहाँ पर यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें कौन पढ़ा रहा है, उनमें इस्लाम कौन पढ़ा है, इंटरफेथ क्लासेस हैं, डिफरेंट फेथ्स के बारे में कौन पढ़ा रहा है, आर दीज रियल मुस्लिम स्कॉलर्स, ऑथेंटिक मुस्लिम स्कॉलर्स, या कि और लोग हर किस्म के लोग पढ़ा रहे हैं जो इस्लाम के नाम पे भी पढ़ा रहे हैं, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं और वो सूडो स्कॉलर्स हैं, ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान है ही नहीं, और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया में है। आपको पाकिस्तान का भी पता था ना, पाकिस्तान में पता नहीं 20 साल तक कौन पकड़ा गया जो 20 साल तक गलत, मतलब वो मुसलमान नहीं था और अंडर कवर था और वो सिखा रहा था लोगों को। तो ऐसी इवल स्कीम्स जो हैं वो पहले भी थी और अब भी होती जाती हैं। इनसे गार्ड करने के लिए अपने आप को, इनसे अपने आप को डैमेज होने के बदले, हार्म होने के बदले हमें क्या करना है, हमने अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को टाइट पकड़ के रखना है। क्योंकि अगर हमारी ये एनिमीज हैं तो ये हमें हमारे लिए ऐसे कहते हैं ना गड़े खोदते रहेंगे। लेकिन अगर हम, अल्लाह ने क्या बताया, अगर हम सही बिलीव करेंगे अल्लाह हमारा वली है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा इंशाल्लाह। may Allah protect us, ठीक है ना। आया नंबर 72, वक़ाल ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारी वकफुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। अब ये उनका ट्रिक देखें आप। वक़ालत ताइफ़तुन, ये आपने अभी अभी पढ़ा था, एंड सेड, क़ालत एंड सेड, ताइफ़तुन एक गरोह ने, अ ग्रुप या अ पार्टी, वक़ालत ताइफ़तुन और कहा एक गरोह ने या एक जमात ने या एक पार्टी ने या एक ग्रुप ने, एंड सेड अ ग्रुप अ पार्टी, मिन अहलिल किताब, फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, यानी अहले किताब में से। अगर मैंने आपको कहा कि सारे के सारे नहीं, ये एक ग्रुप है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये कहा कि आमिनू, आमिनो यानी बिलीव करें, ईमान लें, बिल्लज़ी उन पर, इन उस पर यानी उन पर या उस पर, बिल्लज़ी, अब ये फेलुल अमर है, आप देखें, बिलीव, आमिनो, आमनो नहीं, आमिनो, याद रखें, छोटी छोटी सी है, हम कहते हैं ना जबर जेर के फर्क से फर्क हो जाता है। आमनो दोज़ हू बिलीव, ठीक है, दोज़ हू बिलीव, आमनो दोज़ हू बिलीव, और आमिनो बिलीव, ये है आमना युमिनु ईमानन, वो ही है, फॉर्म 4 है, लेकिन इसमें क्या है, फेलुल अमर है, इंपेरेटिव है, कमांड है। बिलीव, आप ईमान लाइए, किस चीज पर, उस पर जो, इन दैट विच
unzila ala allazina amanu, which was revealed ala allazina amanu, upon those who believe. यानी ये रिवील्ड या उनजिला सेंट डाउन भी है, रिवील्ड भी है, क्योंकि आप कहेंगे ना वही का लफ्ज नहीं यूज हुआ, तो उनजिला विच वाज सेंट डाउन अपॉन दोज हु बिलीव, यानी कि ये देखें उनजिला माजी मजहूल है, पैसिव वर्ब है, अनजला युनजिलु इंजालुन फॉर्म 4, अनजला युनजिलु इंजालुन इसका माजी मजहूल है। तो इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुछ लोग थे, एक ग्रुप था अहले किताब में से, जो लोगों से कह रहा है कि आप बिलीव कर लें, आप ईमान ले आए उस चीज पर जो कि उतारी गई है, जो which has been sent down on those who believe, यानी कि नाजिल किया गया है ऊपर उन लोगों के जो ईमान लाए। वजहन नहारी, वज क्या चीज था? फेस। तो वज यानी कि जब इसका असल में ये एक मुहावरे की तरह समझे, एक फ्रेज है, ये इसलिए यूज होता है वजहन नहार, इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, यानी कह लेना दिन का चेहरा, वजहन नहार यानी दिन का चेहरा। नहार क्या कहते हैं? डे को, डे लाइट को, ठीक है ना, डे कहते हैं, और नहर और नहार, ठीक है ना। तो दिन के रोशनी में सुबह के वक्त जब दिन चढ़े, बोलते हैं ना दिन चढ़े, दिन का चेहरा नजर आए, जब दिन के शुरू का हिस्सा हो, इन द बिगिनिंग ऑफ डे, इन द मॉर्निंग, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ज़र्फ़े ज़मान। ये हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं किसी दिन को, इसका मतलब है वो वक्त जो सुबह का वक्त है, सुबह के टाइम आप ईमान ले आए। किस चीज पे? उस पे, यानी कि जो मुसलमानों पे नाजिल की गई है। वकफुरु आखिरहु, वकफुरु एंड डिनाई एंड रिजेक्ट इट एंड डिसबिलीव इन इट, आखिरहु एट इट्स एंड, एट द एंड ऑफ द डे, इन द इवनिंग, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है ना। और आप इनकार कर दिया करें उससे आखिर, यानी दिन के आखिर में, दिन के आखिर में, यहाँ दिन नहीं लिखा हुआ है, आखिरहु यानी आखिर में, दिन के आखिरी हिस्से में। ये भी क्या है? फेलुल अमर। वकफुरु, पहले लिखा था आमीनु, आप ईमान लाए, वकफुरु और फिर आप डिनाई करें, आप रिजेक्ट कर दें, फेलुल अमर है। अगेन ये जो रात का वक्त लिखा हुआ आखिरहु, ये भी ज़र्फ़े ज़मान है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। लअल्लहुम यरजिऊन, सो दैट दे may, लअल्लहुम, so that they may, यरजिऊन, they may return, they may turn back, ताकि वो लोग लौट जाएं या वापस फिर जाएं। रजा यरजिऊ, रुजुआन सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि एक ट्रिक था, ये एक बहुत गंदी सी ट्रिक थी, समझ लें। ये अडॉप्ट किया था किसने? उनके जो लीडर्स थे, जो जूइश रेबाइस थे, उन्होंने जो लीडर्स थे, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना में रह रहे थे। मदीना के इर्द गिर्द आपको पता है ना, सारे जूइश लोग थे, वहां पर रहते थे। तो वो लोग जो थे, उन्होंने इस्लामिक मिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए उन्होंने ये ट्रिक की, बहुत गंदी ट्रिक थी। उन्होंने ये सोचा कि इस तरह क्या है, मुसलमान डीमोरलाइज हो जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक व शुबा हो जाएगा। तो वो अपने एजेंट्स को भेजते थे, लोगों को भेजते थे कि वो सबके सामने जाके डिक्लेयर करें कि हम मुसलमान हो गए, बिलीव, हम मुसलमान हो गए, वी हैव बिलीव्ड, वो कहेंगे। और फिर शाम के आखिर में उसको रिनाउंस करते, उसको रिजेक्ट कर देते। तो लोगों को जाके बोलते थे, जब वो लोगों को जाके बोलते थे पब्लिकली कि मैं मुसलमान हो गया, मैं मुसलमान हो गया, मैं ईमान ले आया, तो उसके बाद फिर क्या होता था कि वो जब रात को, जब शाम को जब जाके कहते थे नहीं मैंने तो इस्लाम नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने छोड़ दिया, ये क्या था? डिसेप्शन, धोखा, विकेड एक्ट था, एक शर का एक्ट था ये। जब ये लोग प्रिटेंड करते थे और रिजेक्ट करते थे, उनके एक्शन से क्या हुआ? लोगों को परप्लेक्स कर दिया, लोगों को परेशानी में डाल दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया। किन लोगों को? जो नए नए मुसलमान हुए थे। मदीने में जब ये लोग आए, तो मतलब जब मक्के से मदीने आए, तो मदीने में अभी लोग नए नए मुसलमान हो रहे थे। उस वक्त जब ये सब किया, कुछ साल ही गुजरे थे, और उसमें ये हुआ कि मतलब अभी तो जंगे बदर जंगे ओहद की बात है, तो 2-3 हिजरी की बात है। और उन लोगों को जो अभी तक, जिन्होंने इस्लाम को ट्रूली अप्रिशिएट भी नहीं कर पाए थे, फुल्ली अप्रिशिएट भी नहीं कर पाए थे, उनको इस्लाम का ट्रूथ और इस्लाम का नेचर भी पूरी तरह नहीं मालूम था, उनका फेथ भी इतना स्ट्रांग शायद नहीं होगा, उन लोगों को अगर ये पता चलता है कि ये यहूदी और ये जो सुबह जो है ये इस्लाम लाए थे, अभी इन्होंने छोड़ दिया, तो ये एक बहुत ही, और खास करके इसलिए था क्योंकि वहां अरब के लोग जो ज्यादातर इलिटरेट थे,
ज्यादातर इलिटरेट थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अर्लियर रेवलेशंस के जो लोग थे, यहूदी और ईसाई जो थे, उनको तो ज्यादा मालूम है रिलीजन के बारे में, उनको तो ज्यादा रेवलेशन के बारे में मालूम है, तो वो समझ गए हैं, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है, और वो ये समझते थे कि ये जो है उन लोगों को पता चल गया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस रिलीजन। कितनी बड़ी है उनके साथ, ये देखेंगे उनके साथ उन्होंने धोखा किया, और इसकी वजह से वो अनसर्टन हो गए, शक व शबात में पड़ गए कि अब हम क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करें, हम अभी मुसलमान रहें या ना रहें। मुसलमान तो वो हो चुके थे, हम दीन छोड़ दें या हम दीन पर कायम रहें। बहुत बड़ा उनके लिए इम्तिहान था, हमारे लिए तो ऐसे इम्तिहान है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उन लोगों के ट्रिक्स जो है वो यहूदियों के अभी तक चल रहे हैं, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोगों में, देखते हैं किसकी क्या मेंटेलिटी है, किसकी क्या बैकिंग है, किसकी कितना लेवल है, उस तरह से वो लोगों को अभी तक ट्रिक से दीन से हटाना चाह रहे हैं, और कामयाब भी कभी कभी हो जाते हैं। आया नंबर 73, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम कुल इन्नल फद्ला बियदिल्लाहि यु'तीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। वला तुमिनु, एंड डू नॉट बिलीव, और आप ना मानिए, आप ना यकीन करें, हरफ नहीं है, ना माने, वला तुमिनु, आप ना माने किसको, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, एक्सेप्ट, इल्ला यानी एक्सेप्ट, सिवाय उसके, लिमन के जो कोई, यानी जो कोई, तबिअ जो फॉलो करता है, जो पैरवी करता है, दीनकुम आपके दीन को, डू नॉट फॉलो एक्सेप्ट द वन हु फॉलोज योर दीन, सिर्फ उसी की बात आप सुने, वरना इसके अलावा आप ईमान ना लाए, यकीन ना करें किसी का। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए कि इन्नल हुदा, कि बेशक हिदायत, ट्रू गाइडेंस, असली गाइडेंस क्या है, हुदल्लाह, सिर्फ अल्लाह की गाइडेंस। आप कह दीजिए कि बेशक कामिल हिदायत, असली हिदायत अल्लाह की हिदायत ही है, ये आप लोगों से कह दीजिए। अन युता अहदुम मिस्लमा उतीतुम, अन दैट युता, इट इज गिवन, अहदुन टू समवन, एक हिदायत जब अल्लाह ताला देते हैं, वो किसको देते हैं, यानी कि दिया, जो दिया गया है किसी को हिदायत, जो दिया गया है हिदायत, आता युती ईता उन फॉर्म 4 है, दैट इज गिवन टू समवन, यानी कि हिदायत दी जाती है जिस एक को, मिसला मा उती तुम, मिसला यानी मिसाल, यानी मानिंद, इस तरह से, मा उती तुम जिस तरह आपको दिया गया है, जिस तरह आपको हिदायत दी गई है, लाइक that, misla, like that, yani for as the example of ma utitum which was given to you, जो आपको हिदायत दी गई है वो अल्लाह की तरफ से हिदायत है, और ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे। और युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, और दे विल आर्ग्यू विद यू, या वो झगड़ा करेंगे आपके साथ, और दे विल युहाज्जुकुम, वो झगड़ा करेंगे आपके साथ, बहस करेंगे आपके साथ, इंदा रब्बिकुम, आपके रब के पास, नियर योर रब या बिफोर योर रब। तो वो कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि ये आपके कि जो अल्लाह हिदायत है अल्लाह ही देता है, अगर ये आपसे झगड़ा करते हैं तो ये रब के पास। अच्छा, ये अब इसके दो इंटरप्रिटेशंस है, एक ये है कि ये, अच्छा आगे जाके आपको बताती हूँ, चलिए। कुल इन्नल फद्ला बियदिहिल्लाह युतीहि मन यशाउ, से इंडीड, इन्ना से इंडीड, आप कह दीजिए कि बेशक, इन्नल फद्ला के बेशक फजल, यानी फजल, अल्लाह का फजल जो है, बियदिल्लाह अल्लाह के हाथ में है, के से indeed all bounty, all grace, all favor is in the hand of Allah, hand biyadillah, Allah के हाथ में है, युतिही मन यशाउ, he grants it, he gives it to whom he wills, वो देता है जिसको वो चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला इज ऑल एनकम्पसिंग, ऑल नोइंग, और अल्लाह ताला बहुत वसत वाला और खूब जानने वाला है। इसके बाद 74 भी कर लेते हैं, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम। यख्तस्सु, यख्तस्सु, इख्तस्सा, यख्तस्सु, इख्तिसासुन, इख्तस्सा, यख्तस्सु, इख्तिसासुन, ठीक है, साद से है, फॉर्म 8, फॉर्म 8 है, खा साद साद, खा साद साद। यख्तस्सु यानी वो चूज करता है, अल्लाह ताला
मखसूस कर लेता है, इख्तसा मखसूस कर लेता है, चूज कर लेता है, खास कर लेता है. अल्लाह chooses, he chooses, या he singles out, he exclusively singles out बिरहमतिही for his mercy. अल्लाह ताला मखसूस कर लेता है, खास कर लेता है, किस चीज के लिए? बिरहमतिही, अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, खास कर लेता है, मखसूस कर लेता है. मैं यशाउ, whom he wills, जिसको वो चाहता है. वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला is, and Allah is the possessor of great bounty. ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अज़ीम का मतलब है great या huge या बहुत बड़ा, and फ़ज़ल means bounty. अल्लाह ताला is the possessor, और ज़ू का मतलब है possessor. अल्लाह ताला is the possessor of great या huge bounty, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला, बड़े करम वाला है. ठीक है ना. अब इसकी तफसीर देख लेते हैं. आया नंबर 73 में पहला, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल, एक सेकंड, बीच में मैंने इसको बंद नहीं किया था. ओके, वला तुमिनु, अब इसमें यह है कि एक वार्निंग है ये मुसलमानों को कि उन लोगों को ट्रस्ट ना करें जो कि अदर फेथ्स के हैं, यानी उन लोगों को ट्रस्ट ना करें जो आपको आके, एक वार्निंग दी जा रही है अल्लाह की तरफ से कि लोग जब आके आपको कहते हैं, दूसरे फेथ के लोग हम आके कहते हैं, आप उनको ट्रस्ट ना करें. और उनकी जो ट्रिक्स हैं, वो जो आपको इवल ट्रिक्स है, विकेडली आपको वो दीन से हटाना चाह रहे हैं, उनकी जो प्लान है उसको आप कामयाब ना होने दें, उसको हेल्प ना करें. और डिसबिलीवर्स क्या चाहते हैं? वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो बिलीवर्स हैं उनको किसी तरह भी वो बिलीफ से हटा दें, उनको डिसबिलीव में कर दें, उनको गुमराह कर दें, उनको डिविएशन में डाल दें. इस पॉइंट पे अल्लाह ताला बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हिदायत जो है, ट्रू गाइडेंस है, इन वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से, ट्रू गाइडेंस सिर्फ अल्लाह की तरफ से है और कोई नहीं दे सकता. और अनलेस कि पीपल एक्सेप्ट कर लें उस ट्रू गाइडेंस को, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई और वे ऑफ लाइफ नहीं है, कोई और मेथड नहीं है जिसको वो अडॉप्ट करे तो उनको गाइडेंस मिलेगी. ये एक ही रास्ता है, आप बता दीजिए. और इसी तरह फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है, अय्यूता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, यानी कि ये इससे रिवील कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि कोई भी उनके दिलों में कोई भी ग्रज होगा, कोई भी बुग़्ज़ होगी, कोई भी एनवी, कोई भी हसद होगा, कोई भी नफरत होगी, यानी कोई भी उनके दिलों में हेट्रेड होगा, तो वो सब जो है अल्लाह ताला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि वो अल्लाह ताला सॉरी, ये उनका ग्रज को रिवील कर रहा है कि उनके दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के अगेंस्ट कितनी नफरत है, कितना ग्रज है, कितना बुग़्ज़ है, कितनी जेलसी है. और ये भी उनको पता चल रहा है, उनका रिवील कर रहा है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग जो है वो ये भी डरते हैं कि अगर मुसलमानों को हकीकत पता चल गई, अगर हकीकत पता चल गई तो वो क्या करेंगे? दे वुड टेक इट एज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देम इन अल्लाह, बिफोर अल्लाह, कि युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, कि वो ये तो नहीं चाहते हैं कि आपके अलावा कि वो आपको तरक्की मिले, आपकी बात कायम हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कायम हो जाए. तो वो अपनी हेट्रेड में, अपनी नफरत में लोगों से ये भी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों को भी सही बात पता चल जाए, बिकॉज इफ दे नो द ट्रूथ तो वो झगड़ा करेंगे आपके बारे में अल्लाह के सामने, क्योंकि आपने तो छुपाया हुआ है ना हक को. अगर आपने हक को छुपाया हुआ है, उन लोगों ने, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है, अगर उन्होंने छुपाया हुआ है, जब अगर मुसलमानों को पता चल जाता है तो वो फिर अल्लाह के सामने हुज्जत करेंगे, अल्लाह के सामने. तो उनको ये भी डर है, ये डर है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन इनके सामने ना बताना. और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल इनसे कह दीजिए कि जितनी भी फजल है, जितनी भी बाउंटी है, टोटल की टोटल बाउंटी जो है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वो उसको देता है जिसको वो चाहता है. वल्लाहु वासिउन अलीम. यहाँ अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को, अपनी कम्युनिटी को ये बताएं, अश्योरेंस दें कि अल्लाह की जो ग्रेस है, अल्लाह की जो बाउंटी है, अल्लाह का जो फजल है, जिसको चाहे अल्लाह देता है. किस तरह देता है? वो एक नबी भेजता है, वो किताब भेजता है, वो मैसेज भेजता है. ये सब चीजें ऐसे पता चल जाता है कि अल्लाह का फजल इन लोगों पे है. और अल्लाह जिसको चाहे उसको देता है और अल्लाह जिसको ना चाहे वो खुद से बाउंटी नहीं ले सकता है. तो अब ये है कि जो उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवलेशन को नहीं माना, उन्होंने अदर देन
कुरान को माना, अदर देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना। मतलब हम कहते हैं ना कि वो तमाम प्रॉफिट्स को तो मानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और कुरान को नहीं माना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह के साथ अपना जो कॉवेनेंट था उसको तोड़ दिया। उन्होंने उस कॉवेनेंट को ब्रीच कर दिया जो उनका इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, उन्होंने इंटेंशनली मिक्स कर दिया ट्रूथ को और फॉल्सहुड को। आपने देखा वला तलबिसु के, आप इसको मिक्स ना करें। उन्होंने अल्लाह के ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया। उन्होंने अल्लाह ने जो बुक दी थी उसके अंदर जो अहकामात थे उसको जानबूझ के अबैंडन कर दिया। उन्होंने अल्लाह के रिलीजन को अबैंडन कर दिया। अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है अल्लाह के। और इससे पता चलता है कि वो जो है अनविलिंग है कि वो अल्लाह से के दीन को आर्बिट्रेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसका मतलब ये कि वो अल्लाह के लॉज को फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं। अल्लाह ने क्या किया फिर कि लीडरशिप जो है उनसे हटा के मुसलमानों को दे दी। अल्लाह ताला ने देखा, अल्लाह को मालूम था कि ये लोग जो है ये कभी भी मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ से लीडरशिप ले ली और मुसलमानों के हाथ में दे दी, और मुसलमानों को पूरा ट्रस्ट दे दिया, मुसलमानों को ऑनर दे दिया, मुसलमानों को फजल दे दिया। अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह किसको, अल्लाह कहते हैं अलीम है, अल्लाह ताला जानता है कि किसको इज्जत देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया मुसलमानों को और इज्जत दे दी। आया 74 भी हमने पढ़ लिया था, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ। इसमें यह कि अल्लाह ताला यख्तस्सु, अल्लाह ताला चूज कर लेता है, अल्लाह ताला सिंगल आउट कर लेता है, अल्लाह ताला मखसूस कर लेता है, खास बना लेता है। किसकी बेसिस पे? अपनी नॉलेज की बेसिस पे, अपनी विजडम की बेसिस पे, अपनी मर्सी की बेसिस पे, कि किसको किसके ऊपर ज्यादा फजल करे, किस पे रहमत करे। और हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अल्लाह की बाउंटी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल से ज्यादा कोई, और अल्लाह की गाइडेंस से ज्यादा कोई भी चीज नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी पे रहमत की, अल्लाह ने फजल किया, अल्लाह ने उसके पास मैसेज भेजा, तो अल्लाह की गाइडेंस अगर हमने एक्सेप्ट कर ली तो उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और अल्लाह की बाउंटी मैंने आपको बताया इन सब चीजों में है, और जिसको चाहे अल्लाह जब चाहे उनको दे दे। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा फेवर है, बहुत बड़ा फेवर है। अगर हम अल्लाह की किताब से टाइट रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, वी विल ऑलवेज स्टे ऑन ट्रू गाइडेंस। हम ये सीखते हैं इससे कि जहां भी हम हो, हम अपने दीन को डिफेंड करें। हमें पता है कि हमारा दीन सच्चा दीन है, और उन कैपेबिलिटीज से डिफेंड करें जो अल्लाह ने हमको दी है। अगर मुझे और आपको पढ़ने की तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने समझने की तौफीक दी है, हमें आंख दिए, कान दिए, सब कुछ दिया, हमें एक दिमाग दिया, अकल दिया, तो अगर हम अपने दीन को सही तरीके से डिफेंड करें, इसमें ये मतलब नहीं लड़े भड़े, लड़ने के लिए नहीं, अच्छे तरीके से डिफेंड करें, समझदारी से डिफेंड करें, तो कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो इसमें सक्सीड नहीं करेगा कि वो हम पर हावी हो जाए, ठीक है, या हमें दीन से हटा दे। अभी है टाइम पर आयत कर देते हैं। वमिन अहलिल किताबि मन इन तामनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबील व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। वमिन अहलिल किताब, एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, और अहले किताब में से, मन इज द वन हु, यानी ऐसा भी है जो, वो है, इन अगर, इफ, देखिए यहाँ हरफ शर्त है, अगर, मन इन तामनहु, तामनहु का मतलब है किसी के पास अमानत रखवाना, यानी आमना से निकला अमानत रखवाना, अलिफ मीम हमजा मीम नून, कि अगर उनके पास आप अमानत, अहले किताब में से, शुरू से देखें, अहले किताब में से ऐसा भी कोई है, लोग हैं कि अगर तामनु, अगर आप उनके पास कोई अमानत रखें, is the one who if you entrust him with बिकिंतार, किंतार आप पढ़ चुके, याद है, ढेर, दौलत का ढेर, आपके पास एक खजाना है, वो आप उसके पास रखवा दें। इफ यू एंट्रस्ट हिम विद अ ह्यूज पाइल ऑफ वेल्थ, विद द ट्रेजर, विद द फॉर्चून, जो भी आपके पास है, आप उसके पास एक खजाना भी रखवाएं, युअद्दिही इलैका, he will return it to you in full, he will pay it all back to you।
adda yuaddi ta'diyatun, adda yuaddi ta'diyatun form 2, he will return it to you, ilayka, to you, वो आपको वापस लौटा देगा आपकी तरफ, वो आपको सब कुछ वापस कर देगा। पूरा खजाना भी आपने किसी को, सुन ले अहले किताब में से आप किसी के पास पूरा खजाना भी रखवाए, वो इतना ऑनेस्ट होगा पूरा वापस कर देगा। वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैका, और उन्हीं में से वमिनहुम, और फ्रॉम देम ऐसा भी है, मन जो के इज द वन हु इन तामनहु, इफ यू इंटरेस्ट हिम बिदीनार, एक दीनार से, एक सिंगल कॉइन से, दीनार जरूरी नहीं कि दीनार हो, रुपए हो, पैसा हो, जो भी है, दीनार है, रियाल है, जो भी आप कह लें, अगर आप उसको डॉलर है तो आप उसको इंटरेस्ट करें, आप उसको अमानत दें, एक सिंगल कॉइन के लिए भी उनमें से वो भी है कि अगर आप उसके पास अमानत रखें एक दीनार या एक कॉइन, ला युअद्दिही इलैक, not he will return to you, not he will pay back to you, illa except ma dumta alayhi qaima, that you keep constantly, dumta daiman यानी आप उसको constantly, persistently आप उसके ऊपर रहे, alayhi upon him, qaima यानी upon him standing, demanding, आप खड़े रहे, उसको डिमांड करते रहे, इंसिस्ट करते रहे। उर्दू में भी बताती हूँ कि आप अगर आप किसी उनमें से वो भी है कि जिसको आप अगर एक दिनार भी दें, पूरा खजाना दिया उसने आपको पूरा वापस कर दिया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको एक दिनार भी दें तो वो आपको नहीं लौटाएगा, वो आपको सिवाय कि आप उस पर खड़े रहें और उससे मांगते रहें, कंटिन्यूअसली आप उस पर खड़े रहें और इसरार करते रहें कि भाई मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज दे, that is because they qalu, because they said, या they say, वो क्या कहते हैं, लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, लैसा not, not is अलैना upon us, that यानी there is, जब कहते हैं लैसा अलैना यानी हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर कोई blame नहीं है, there is no blame on us, फिल उम्मीयीन, concerning the ummi, concerning the illiterate people, सबील anyway, any accountability, यानी वो क्यों कहते हैं, यू क्यों पैसे वापस नहीं करते हैं, एक दिनार भी दे दो, ज़ालिका यानी दैट इज, ये इस वजह से कि वो कहते थे या वो कहते हैं कि नहीं है हम पर कोई भी उन अनपढ़ लोगों के बारे में कोई रास्ता, सबील कोई रास्ता, कोई हिसाब किताब नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं, उनके बारे में हम से कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। वह अभी आगे मैं तफसीर भी बताती हूँ। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, एंड दे से, वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की तरफ वो क्या करते हैं, अबाउट अल्लाह वो झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, एंड दे से अबाउट अल्लाह, अपॉन अल्लाह लाइज, वहुम यालमून, जबकि वो जानते हैं, हालांकि वो जानते हैं, वाइल ऑल्दो दे नो। इसके साथ एक और भी लाइन नहीं चले, रहने दे, कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि फिर चल कर ले, छोटा सा वो, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, इसके साथ ही है, बला यानी, बला का मतलब है यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, बला यानी कि हाँ क्यों नहीं, बल्कि ये सब वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं, बल्कि ये बात है, ऑफ कोर्स, मन औफा बिअहदी, whoever fulfills his covenant, whoever fulfills his pledge, whoever fulfills his commitments, यानी कि जो अपने अहद को पूरा करे, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करे, और औफा क्या चीज होता है, औफा यूफी ईफा उन फॉर्म 4, वत्तक़ा एंड ही इज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, और वो तक़वा इख्तियार करे, ये आप कई दफा पढ़ चुके हैं, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, ये भी आप कई दफा पढ़ चुके हैं, देन इंडीड अल्लाह loves those who are conscious of Allah, Allah loves those who are conscious of him and those who fear him, तो बेशक अल्लाह पसंद करता है मुत्तकियों को। अब आया 75-76 कर लेते हैं। कुरान डिस्क्राइब कर रहा है कुछ लोगों को अर्लियर लिबरेशन से, यानी जो अहले किताब है उनमें, उनकी कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेसेस उनके कैरेक्टर की हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी नहीं है, और उस वक्त की नहीं है, इट सीम्स कि ये ट्रू है फॉर पीपल इन ऑल जनरेशंस। और ये इसमें ये भी बता रहे हैं कि इस्लामिक फेथ में क्या वैल्यूज हैं, करेक्ट वैल्यूज क्या हैं। तो कुरान ये कहता है उस अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस में, अपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस में, हर ये कह रहे हैं कि हर किस्म के लोग हर कम्युनिटी में होते हैं,
ٹھیک ہے نا. اب ان کی ہاسٹیلٹی ہے ٹورڈز پلاٹنگ اینڈ اسکیمنگ اگینسٹ دیئر اٹمپٹس, یعنی وہ اللہ ٹو انڈرمائن دا اسلام اینڈ مسلمس, پھر بھی قرآن کیا کر رہا ہے, ان کو ڈیو کریڈٹ بھی دے رہا ہے. یعنی اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اسلام کے دشمن ہیں تو سب کے سب برے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے نا, ہم کس طرح بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, ہم کس طرح ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں او یہ تمام کے تمام. تمام کے تمام کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں. ایک گھر میں بھی سب کے سب ایک طرف نہیں ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی نہ دیں, او سب کے سب یہ, او آل آف دیم, ایسا نہیں بولنا چاہیے. اگر اس میں سمجھے کہ ایک گھر میں 2 ڈاکو رہتے ہیں اور اس میں 3 جو ہیں وہ شریف لوگ ہیں, اب آپ سامنے سے کہیں گے کہ سب کے سب ڈاکوؤں کا گھر ہے. نہیں, اس میں 2 ڈاکو ہیں, 3 یا 4 شریف بھی ہیں. ایسے ہی اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکو ہے لیکن سمجھو کوئی ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ کہ یہ بہت جھوٹی ہے, اس کا گھر پورا جھوٹا ہے. نہیں, ایک جھوٹ بول رہی ہے اس کا مطلب سارا گھر جھوٹا نہیں ہے. بھائی بہن ڈفرینٹ ہے, ماں باپ ڈفرینٹ ہے, ہسبینڈ وائف ڈفرینٹ ہے. ابھی ہم کلاس شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں کیسے ہسبینڈ اور وائف 2 الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, 2 الگ الگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور ان بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پولز اپارٹ ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ 2 قسم کے بیہیویئر بتا رہے ہیں ہمیں کہ اپنی ٹرانزیکشنز میں جو اہل کتاب میں سے ٹرسٹ وردی لوگ بھی ہیں جو ان کو پورا کا پورا خزانہ دے دیں گے, کتنی بھی ٹیمپٹیشن ہوگی لیکن وہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں ماریں گے, پورا کا پورا پیسہ واپس کر دیں گے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت گریڈی ہیں, جن کو کوئی رسپیکٹ نہیں کسی کی رائٹس کا, کسی کے حقوق کا. اگر ان کو 1 دینار بھی دے دیں, 1 کوئن بھی دے دیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کو بلونگ کر رہا ہے. چھوٹی سی چیز ہے, کبھی کبھی پین ہم لے آتے ہیں کسی کا غلطی سے, ہم کہتے ہیں اوہ اس کو واپس کرتے ہیں. کسی کی کوئی چیز ہے کتنی بھی اسمال ہو, کتنی بھی اس کی انسگنیفیکنٹ آپ کے سامنے ہو, کیا ہے ایک پین ہی تو ہے, $1 کا ہی تو ملتا ہے, نہیں, ان کو واپس کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہ رہیں, ان کو پش نہ کرتے رہیں, ان کو لگاتار اصرار نہ کرتے رہیں. اور پھر کیوں وہ کرتے ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور کتنی خراب جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ جو اتنی خراب بات ہے یہ ڈیلیبریٹلی نوئنگلی وہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. کیا اللہ نے ایسی بات کہی ہے؟ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کہا ہے کہ نہیں, اگر یہ آپ کے دشمن تھے یا آپ کو تنگ کر رہے تھے, آپ کے اینیمیز تھے یا آپ کے دین میں سے نہیں تھے, تو ان کی چیزیں آپ واپس نہ کریں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم کسی کو بھی اگر ہم ان کا لے لیں, یہ امی ہے, یہ الٹریٹ لوگ ہیں. اور کس کا آیت کس کی ریفرنس کہہ رہے ہیں؟ وہ جوز یہ کہہ رہے ہیں, مطلب جوز کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوتا تھا تو وہ اس کو پورا کرتے تھے, ٹرسٹ وردی ہوتے تھے, آنےسٹ ہوتے تھے. لیکن جب کوئی نان جو ہوتا تھا تو وہ یہ چیٹنگ, یہ ڈسیپشن, یہ سوینڈلنگ, یہ سب کچھ پریکٹسز کرتے تھے, اور کوئی ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا تھا, اور جسٹیفائی بھی کرتے تھے. اچھا, یہ صرف وہ لوگ نہیں کرتے ہیں, میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مسلمان ہیں, جو ہمارے اپنے دین کے لوگ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے پاس اگر غیر مسلم کا پیسہ آ گیا تو ہمیں واپس کرنا ضروری نہیں. وہ بینک سے انٹرسٹ لے کے یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم کا پیسہ, یہ تو ہمارے پاس آ گیا تو بس ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس آ گیا. آپ ایک تو انٹرسٹ لے رہے ہو, غلط کام کر رہے ہو, اوپر سے آپ کسی اور کا پیسہ اپنے انٹرسٹ بھی لے کر یہ کہتے ہو, اور کسی اور کا پیسہ بھی آپ لے کے, آپ مطلب دو الگ الگ چیزیں. انٹرسٹ لے کے بینک, یہ بینک تو کافروں کا ہے, ہم اس سے لے لیں, اور کسی کو آپ نے او کرتے ہیں, آپ کسی کے پیسے آپ کے پاس امانت ہے. آپ یہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے گئے, روانہ ہوئے, انہوں نے تمام امانتیں کس کی تھی؟ جو رہ گئے تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں, وہ نان مسلمس تھے. وہ مکے میں جو رہ گئے وہ تمام جو بھی لوگ تھے وہ نان مسلمس تھے, مشرک تھے. ان مشرکوں کا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ ان کو واپس کر دینا, میں جا رہا ہوں ہجرت پہ, یہ ان کا مال ان کو دے دینا. یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے اللہ پہ ڈال رہے ہیں, بہت غلط کام کر کے, ایسا کر کے, اور اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے خود, آپ کو پتا یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا مسلم اور نان مسلم میں, یہ ڈیلنگز میں نہیں ہوتی ہیں, یہ سوشل ڈیلنگز میں بھی نہیں ہے, یہ اکنامک ڈیلنگز میں بھی نہیں ہے. یہ فالس سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. میں نے خود ایک
अखबार में पढ़ा था। मैं उस वक्त बैंकॉक में रहती थी, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, वो बैंकॉक में रहती थी तो एक मैंने अखबार पढ़ा, उधर भी आता था ना पाकिस्तान का कोई अखबार, उर्दू का अखबार था, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। वैसे ही मेरी नजर पड़ गई, कौन बैठ के उर्दू अखबार इतना पढ़ता है, लेकिन वो नजर पड़ गई कि उसमें कुरान और सुन्नत लिखा है, चलो इसको पढ़ लो। उसमें पढ़ा तो एक आदमी ने सवाल किया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उससे यही सवाल किया था कि मेरे पास पैसा है और किसी का है, या मैं पैसे लेता हूँ किसी से, या मैं गैर मुल्की गैर इस्लामिक बैंक में मैंने डाले में, मतलब कहीं और बाहर डालें, तो ये मेरे लिए ठीक है। तो उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, अपने आप से उसने जवाब दे दिया, हाँ गैर मुस्लिमों का पैसा अगर आप हड़प कर लें तो ठीक। हड़प का लफ्ज उसने नहीं लिखा था, लेकिन वो यूजर्व कर लेना, उसको ले लेना, इलीगली लेना, जबरदस्ती ले लेना। तो ये लोग भी यही कह रहे थे कि वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू कीप फेथ विद द उम्मीज। उम्मी का लफ्ज है ना उम्मीयीन, उम्मीयन को मैंने अभी जो आपको ट्रांसलेट किया, मैंने आपको बोला द इलिटरेट पीपल। उम्मी यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है। इस जब ये अरबिक में ये वर्ड जब यूज होता है तो ये उम्मी का लफ्ज यूज होता है हम इलिटरेट या अनलेटर्ड के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो लफ्ज यूज है उम्मी यल्लजी, यानी वो जो उम्मी जो कि अनलेटर्ड थे। इलिटरेट नहीं कहेंगे हम, अनलेटर्ड कहेंगे। अनलेटर्ड और इलिटरेट लोगों के लिए ये लफ्ज यूज होता है कुरान। और इसमें जब यहूदी यूज करते हैं उनके पास क्या, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं लफ्ज क्या होता है, जेंटाइल्स। जेंटाइल्स आपने जिनने इंग्लिश में पढ़ा है, तो ये वो लोग जो उस वक्त अरब्स थे, उनको यहूदी लोग भी द जेंटाइल्स कहते थे। और उनकी किताबें में अपने थे किल द जेंटाइल्स, फना द जेंटाइल्स, ये सब उनकी किताबों में है। तो जो नॉन जू है वो जेंटाइल हो गया, और जो जू है वो जू हो गया। तो ये सब करके चले एक गलत काम कर रहे हैं, इसके बाद ये कह देना कि ये अल्लाह की तरफ से है, कितनी बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला किसी फॉल्सहुड को, किसी ईवल को अल्लाह सपोर्ट नहीं करता है। और किसी के पैसे अनजस्टली ले लेना, किसी को धोखा देना, किसी की ट्रस्ट को बिट्रे करना अमानत है। अमानत है, और अमानत किसी ने आपके पास रखवाई है, उसमें से आप खयानत कर रहे हैं और फिर आप अल्लाह पे डाल रहे हैं कि हमें हिसाब किताब नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। अमानत अमानत है, जिस किसी ने आपके पास रखवाई है, किसी के साथ भी हम अनफेयरली नहीं डील कर सकते, ये फ्रॉड हो जाएगा, और अल्लाह के पास इसकी पूछ है। और फिर इसी के एंड में जो मैंने कहा ये आयत भी पढ़ लेते हैं, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने कहा था, पहले बताया था कि मुफसिदीन को अल्लाह नहीं पसंद करता, मुत्तक़ीन को अल्लाह पसंद करता है। ये हमारे लिए फिर एक रिमाइंडर है टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, तकवा इख्तियार करें। बेसिक रिक्वायरमेंट है एक मुसलमान की, यानी हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कवेनेंट है अल्लाह के साथ, वो यही है कि हम सब अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करिए। हमारी फर्स्ट कॉवेनेंट है, फर्स्ट प्लेज है, फर्स्ट कमिटमेंट है। हम पहले ही जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़े इसको जाके दोबारा से पढ़े, इसका मतलब क्या है, ये एफर्मेशन है एक, कि अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह ने ये मैसेंजर भेजा है, हम उसी की इत्तिबा करेंगे। तो हमारे पास बाइंडिंग है कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नहीं, हमारे ऊपर बाइंडिंग है जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, उन कमिटमेंट्स को हम पूरा करें। जो हमारी अग्रीमेंट्स हैं किसी के साथ भी, अपने स्पाउसेस के साथ, मियाँ की बीवी के साथ, बीवी के मियाँ, वो भी नहीं करते हैं ना पूरा। शादी से पहले इतनी चीजें कमिट करते हैं, शादी के बाद सब चीजें भूल जाते हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, जहां भी आप वर्क पे हैं, घर पे हैं, हम अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें, क्योंकि हमने कमिट किया है। और अगर हम अपना वर्ड पूरा रखेंगे, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, तो फिर हम क्या होंगे, मुत्तकून में से होंगे। और जब हम मुत्तकून में से होंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह हमें पसंद करेगा। अल्लाह ताला पसंद करता है जब हम अपनी जुबान पे कायम रहे। हाँ, अगर हमने कोई गलत वर्ड किसी को दे दिया, लास्ट वर्ड में क्वेश्चन की मुझे याद आ गया, जब नहीं मैंने उसे कहा था, मैं अगर आपने गलत काम करने का किसी को बोला था कि मैं ये करूंगी, वो आप नहीं करेंगे, वो आप रुक जाएंगे। तो एक अहद को पूरा करना हम पे फर्ज है, लाजिम है, अनलेस के उससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी की चीज को हम हड़प कर रहे हो, कोई हराम चीज हो, तो फिर उसको आप तोड़ सकते हैं। और तो अहद को तोड़ने का लिखा हुआ हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमको उसको किस तरह से उसमें से निकलना है, लेकिन बगैर किसी वजह के अहद को नहीं तोड़ना है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। ये उम्मीयीन सबील, सबील का क्या होगा? सबील रास्ता, पाथ, यानी कि अब ये इस अच्छा वो पूछ लिया नाहिद। इसका मतलब ये देखे, एक
ایک راستے پہ چل کے ہم کہیں پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, ویری گڈ کوشچن, کہ راستے پہ چل کے کہیں پہنچتے ہیں. سبیل کا مطلب ہے اس راستے پہ چل کے ہم نے پہنچنا ہے, مطلب یہ ذریعہ. تو اگر یہ ذریعہ بن رہا ہے تو اس ذریعے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی پوچھ نہیں کرے گا. ان امیین کے ساتھ ہم جو کچھ کر لیں گے, ان سے ان کا پیسہ اگر ہم ہڑپ کر لیں گے تو یہ کوئی ذریعہ نہیں بنے گا ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا. اس کا بہت مشکل تھا کہ اس کو ہم ایک لفظ میں ڈالیں. سبیل کا مطلب ہوتا ہے پاتھ, وے, مینز, انگلش میں کہتے ہیں نا مینز. اٹ ول ناٹ بیکم اے مینز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ حساب کتاب لے گا. ہماری حساب کتاب کا ذریعہ نہیں بنے گا اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا, کیونکہ وہ جینٹائلز ہیں, وہ امی ہیں, وہ نان جوز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور کچھ؟ جزاک اللہ خیر. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ٹیوزڈے کو. وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. Everybody جزاک stay اللہ safe خیر. and stay blessed. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. ویاکم ویاکم. فرحت آ گئی ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے فرحت آپ کو دیکھ کے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ بہت الحمدللہ, بہت اچھا تھا الحمدللہ. بعد میں انشاءاللہ پوچھیں گے ڈیٹیل. اوکے, السلام علیکم سب لوگ. ریکارڈنگ سٹاپ. وعلیکم